So वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ द सब्जेक्ट BBCCT 117 दैट इज़ क्रोमोसोम्स। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही थोड़ी सी इसमें डेफिनेशंस और टर्म्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसका हमें डायग्राम पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे है। सो द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज लेट मी जूम इन दिस डायग्राम. So here you can see there is the DNA in between of the chromosome. This is the centromere. This blue line is the chromonema, and this red dots on this DNA is the chromomere. This part, the white part inside the chromosome, is the matrix, and this outline of chromosome is the pellicle. This whole structure of chromosome single is the chromatid. Okay. नेक्स्ट है सिस्टर क्रोमेटिड्स. क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम में जब हम बीच से ब्रेक करेंगे, जो दो हाफ बनते हैं, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है. सो दीज टू क्रोमेटिड्स आर सिस्टर क्रोमेटिड्स. दूसरा क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमेटिड, इसका एक क्रोमेटिड, दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ओके. सो व्हाट आर क्रोमेटिड्स? one of the two distinct longitudinal subunits or each strand of a chromosome is referred to as chromatid. Chromatids are of two types, sister chromatid and non-sister chromatid. Simple definition, 1 mark mein. Chromonema, what is chromonema? These, the blue lines. A chromosome consists of spirally coiled, thin or filamentous, long, continuous structure called as chromonema. The plural is chromonemata. These are the coiled filament in which genes are located and extend along the entire length of chromosome. We can see it is extended along the entire length of chromosome. Next is, it's okay. Let me read it again. The chromonema is the chromosome which consists of spirally coiled, thin or filamentous, long, continuous structure called as chromonema. The plural is chromonemata. These are the coiled filaments in which genes are located and it extends along the entire length of the chromosome. The next is centromere. Centromere is a non-stained localized region of the chromosome with which spindle fibers attach. जब cells का separation होता है during replication, centromere is the part of chromosome जहाँ से spindle fiber attach होते हैं और उसको poles की तरफ move करते हैं to separate and divide them into different daughter cells. Also known as primary constriction or kinetochore. It is necessary for movement of chromosome during anaphase because spindle fibers only attach to centromeres, as we know. Next is the telomere, the terminal part of chromosome, सबसे लास्ट में जो उसका end होता है क्रोमोसोम का, which contains repetitive nucleotide sequences which protects the ends of chromosome. It stabilizes the ends and removes the difficulties of replicating the ends of linear DNA. क्रोमोसोम के एंड को प्रोटेक्ट रखता है टीलोमियर रीजन. रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं इसमें, और एंड्स को स्टेबलाइज रखता है, और रेप्लिकेशन के टाइम पे जब डिफ़िकल्टीज़ होती है, रिमूव्स ऑल दोज डिफ़िकल्टीज़ ऑफ रेप्लिकेटिंग द एंड्स ऑफ लीनियर डीएनए. लीनियर डीएनए को जब हम रेप्लिकेट करते हैं, देयर इज़ वन थिंग, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम. दिस टीलोमियर रीजन helps in stabilizing and removing those difficulties of replicating the ends of DNA. Next is chromomeres, the small bead-like structures formed by coiling of chromatin threads. It is able to synthesize greater amounts of nucleoprotein. Chromomeres जो हमने chromonemata पे red dots देखे थे, they were the small bead-like structures. They are formed by coiling of chromatin threads. वही chromatin thread जब थोड़ा सा coil हो जाता है, it forms the chromomere. It synthesizes greater amounts of nucleoprotein. Next is satellites. The terminal segment of a chromosome that is separated from the main body of the chromosome by a secondary constriction is known as satellite. Matrix, a jelly-like substance enclosed within the pellicle of chromosome containing chromonemata is called the matrix. जैसे कि सेल में अगर हम देखें, the chloroplast region. सो द मैट्रिक्स, जो हमारा अंदर का जितना भी एरिया होगा क्रोमोसोम का, दैट इज़ मैट्रिक्स. जो उसके अंदर की हवा है, जहाँ रीजन खाली है, पूरा कुछ भी नहीं है, दैट इज़ मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं. कैरियोटाइपिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट, पेयरिंग एंड ordering of all the chromosomes of an organism is known as karyotype, and pictorial presentation is known as karyotyping. हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको अरेंज करना, जितने भी क्रोमोसोम है अरेंज करके रखो, उनको पेयर करो, जिसका पेयर जिसके साथ है, और उनको ऑर्डर करके रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. दैट इज़
कैरियोटाइप, और उसी कैरियोटाइप का जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक फोटो होती है, दैट इज कैरियोटाइपिंग. इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर्स फॉर ईच क्रोमोसोम बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज स्टेनिंग प्रोसीजर्स. सबसे जो लास्ट चैप्टर है, डिजीजेस, द डीएनए डिजीजेस, एबनॉर्मेलिटीज़ एंड डिजीजेस, सिंड्रोम्स, उसमें सभी डिजीजेस के कैरियोटाइप्स हैं कि कितने हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, कौन से क्रोमोसोम में क्या हुआ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैरियोटाइपिंग. हम कैरियोटाइपिंग की हेल्प से ही देख सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम में डिलीशन हुआ है, या कौन सा क्रोमोसोम एब्सेंट है, या कहाँ पे कोई क्रोमोसोम इंक्रीज या फिर डिक्रीज है. तो दैट इज़ कैरियोटाइपिंग. द लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स. 3 to 5 मार्क्स में ये भी आ जाता है. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर रॉड शेप्ड एंड कंटेन्ड इन द सेलुलर न्यूक्लियस. सेलुलर न्यूक्लियस में होते हैं. मल्टीपल पेयर ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स से बने हुए होते हैं. दे आर हाईली कंडेंस्ड टू फिट इन टू द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे. दे आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स. दे आर मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, एंड डीएनए रैप्ड अराउंड इट. कैसे बने होते हैं ये? 8 हिस्टोन प्रोटीन है, जिन्हें हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं. डीएनए उसके अराउंड रैप्ड है, तो उससे हमारा जो ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है इस तरह से बनता है. दे आर मोस्ट कॉम्पैक्टेड ड्यूरिंग मेटाफेज. बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा मेटाफेज में, बिकॉज मेटाफेज एक प्लेट एक फॉर्म होती है, एक ही जगह सेल में अलाइन हो जाते हैं इन द मिडल ऑफ द सेल. दे आर आइडियल फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिकॉज दे बिकम थिकर एंड शॉर्टर ड्यू टू कॉम्पैक्शन. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करने में eukaryotic chromosomes are the best because they become thicker and shorter due to compaction. They are composed of two longitudinally identical units called chromatids that are located together at a common point called the centromere. Okay, composed of two longitudinally identical units. chromatids जो मैंने बताया कहाँ पे होते हैं? They are located together at a common point called the centromere. Simple, nothing is there. छोटी सी चीज़ है. चैप्टर फिनिश. इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे. थैंक्स.